Hello, fellows. I welcome you all to the English channel Learn English with Nandita with me. And today we will be learning a very important chapter for your 10th board exam from your course book First Flight. And the name of the chapter is A Long Walk to Freedom. Now, here's is the outline of the story, or the extract rather, which has been taken from the larger autobiography. It is about Nelson Mandela, his and his country's struggle to liberation and finally getting that liberation or freedom on 10th of May 1994, when he is taking his oath as the first democratically elected black president of South Africa. So, what is the atmosphere there? How is the celebration going on? Who are the people and other dignitaries and foreign delegates who have joined them? And what is the promise Nelson Mandela is making to his people? What are his ideals that he's going to set forth? That is what the chapter is all about. ओके सो एक छोटा समरी अगर इस चैप्टर का देखें, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है मतलब आप कथा है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और जो पूरा 20th सेंचुरी था वो पूरा 20th सेंचुरी उन्होंने खुद और उनके साथियों ने, उनके कॉमरेड्स ने कैसे अपार्थेड मतलब जो रंग भेद है ना, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट लड़ाई की, और फाइनली उन लोग सक्सीड हुए और उनका जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो 1994 में सेटअप हुआ, और वो पहले प्रेसिडेंट चुने गए उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, फर्स्ट डेमोक्रेटिकली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के। तो ये चैप्टर जो है उनके ओथ टेकिंग सेरेमनी से रिलेटेड है, उनके स्पीच के बारे में है, उस स्पीच में वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं अपने लोगों को, और उनके आइडियल्स क्या हैं, उनके वैल्यूज़ क्या हैं, इस बारे में ये चैप्टर है। ऑलराइट, so what is the theme of the autobiography? The theme is basically a long drawn struggle against the oppressors, by the courage and character of the people who sacrifice so much for the equality and peace for their country, for their nation, Africa, South Africa. So this theme is very much what the India's own freedom struggle was like. So a certain question might be asked to generate the similarities between the two, which is rare, but it might be. And you can obviously, if you have forgotten something about the chapter, you can remember your own country's freedom struggle and keep writing about it accordingly, राइट। सो जो थीम है वो फ्रीडम, बहुत लंबी चली, पूरे 20th सेंचुरी में चली हुई फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल के, जिन लोग की अपार्थेड से लड़ रहे थे, और उनके करेज और कैरेक्टर के बारे में है, जिसकी वजह से उन्हें फाइनली पीस और लिबरेशन, है ना, शांति और खुशी और प्रॉस्पेरिटी, है ना, समृद्धि मिल पाई उनके नेशन को। और ये काफ़ी हद तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की तरह ही है। समरी और द प्लॉट मैंने वैसे भी बताया हुआ है, तो बेसिकली ये एक एक्सट्रैक्ट है, पूरा बुक नहीं है, एक छोटा हिस्सा है, and it is basically the early life of Nelson Mandela, as well as coming of age and his education, and it is also about the struggle of his and his comrades to gain the freedom of South Africa, and how on 10th of May 94 Nelson Mandela has taken the vow as the first black president of South Africa, has taken the oath of being the first president of black president of South Africa, and also thereby how the democratic country evolves or comes about. So this is the basic summary or the plot of the story, है ना। Now let's come to the word meanings and some excerpts which can come as extract questions, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जान लेते हैं, और कुछ एक्सेप्ट मतलब छोटे छोटे फ्रेजेस, पैरास या छोटे पीसेस जिसमें से कि एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है? इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम, लिबर्टी, ठीक है। अपार्थेड तो मैंने पहले भी बताया है कि रंग भेद है या फिर एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जो साउथ अफ्रीका में वाइट सुप्रीमेसिस्ट करते थे
ब्लैक अफ्रीकन्स के अगेंस्ट में उनको जीने नहीं दिया जाता था, उनके साथ उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई जाती थी। वो चर्च में, नॉर्मल किसी पब्लिक पार्क में, पब्लिक प्लेसेस में जा नहीं सकते थे। उनका टाइम सेट था जबकि वो रोड्स पे चल सके, इस तरह से, है ना। तो उस सिस्टम को अपार्थाइड कहा जाता है, रंग भेद, राइट। देन बिसीज मीन्स सराउंडेड बाय, घिरा हुआ, ठीक है। ब्रुटैलिटी का मतलब होता है क्रूअल्टी या जब आप काइंड नहीं हो, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी को एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइटेशन। कॉमरेड का मतलब होता है आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, कंपेनियन। प्रेजुडिस का मतलब होता है एक गलत धारणा पैदा हो जाना या बना लेना किसी के प्रति, ठीक है। रॉन्ग आइडिया अबाउट समबडी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन। प्रोफाउंड का मतलब होता है कोई भी जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरा हो और बहुत मीनिंगफुल हो, ठीक है। डीप एंड मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। रिजिलियंस, जो कि हम रिजिलियंस किस तरह के क्वेश्चंस में आ सकता है। रिजिलियंस ऐसे आ सकता है कि हाउ द साउथ अफ्रीकन पीपल हैव शोन रिजिलियंस, है ना। हाउ हैव दे गॉट इमेंसिपेशन, ठीक है। इस तरह से व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड। सो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो रिजिलियंस कैसे दिखाया साउथ अफ्रीकन्स ने कि दे नेवर गेव अप, they kept on fighting against the oppressors again and again and again and again. So resilience is a quality of never giving up, okay. Glory means pride, है ना, गर्व। डिप्राइवेशन का मतलब होता है किसी को डिजेनरेट कर देना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के साथ बहुत बुरा करना, ठीक है, किसी को अलग थलग कर देना, राइट। एम्ब्रेस का मतलब एक्चुअली होता है गले मिलना, बट यहाँ इट मीन्स टू होल हार्टेडली एक्सेप्ट, wholehearted acceptance, okay. So it is basically hugging, but it is here wholehearted acceptance. Embrace इसके चैप्टर के किस कॉन्टेक्स्ट में आया है कि how they are accepting or embracing the idea of democracy. That means every people is equal and everyone has the right to vote. How they are embracing the constitution, their written constitution, which includes people from black side as well as brown side as well as white side of the entire community, right. Now let's come to the excerpts or the smaller phrases and little clauses जिसके कि extract question की तरह आ सकते हैं। जैसे कि a rainbow gathering, है ना, जब वो प्रेसिडेंट ओथ ले रहे हैं, उनके सामने जो गैदरिंग है उनको वो दिखा करके नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ये एक रेनबो गैदरिंग है। क्यों? क्योंकि द क्राउड दैट हैज़ कम अप ओवर देयर इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम ऑल नेशन, सभी देशों के लोग आए हुए हैं, सभी रेस के लोग आए हुए हैं। दे इंक्लूड ब्लैक, दे इंक्लूड वाइट, दे इंक्लूड इन बिटवीन ब्राउन पीपल। देयरफॉर ही प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला इज टॉकिंग अबाउट द गैदरिंग और टॉकिंग अबाउट द crowd in front of him as a rainbow gathering. Then let's come to the next excerpt or the next short phrase. A seat of white supremacy. Seat of white supremacy वो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर 10th में 1994 में यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरा में जहाँ पर उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी ली और लोग गैदर हुए और डिग्निटरीज, फॉरेन डिग्निटरीज आकर के उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। वो वही सेम यूनियन बिल्डिंग कुछ सालों पहले तक, कुछ दिनों पहले तक वाइट लोगों के अंडर में था। उन लोग सुप्रीमिस्ट आइडियाज़ और रूल्स ये सब वहीं पर बैठ करके लिखते थे, बनाते थे और उसको लागू करते थे, राइट। सो द वाइट सुप्रीमिस्ट वर sitting at that same union building which now has become the symbol of first democratic government and first democratically elected black president, ठीक है। So that is the seat of white supremacy, that union building, है ना, that amphitheater. Now let's come to the next phrase which is a glimmer of humanity. ये कहाँ पर आता है? ये उस जगह पर आता है चैप्टर में जब नेल्सन मंडेला अपने जेल के मतलब जब उनको जेल हो गया था, उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था क्योंकि वो अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे। तो उस लॉन्ग ईयर्स, है ना, 30 लॉन्ग ईयर्स ऑफ प्रिजन के 30 लॉन्ग ईयर्स ऑफ हिज प्रिजन सेंटेंस when he was inside the jail,
right? He managed to notice very small gestures, very small signs of humanity from the white people who were suppressing him. uh, like, maybe the jailer, or maybe just a constable, helping out him, or giving him a glass of water, or showing him some kind of respect, or some kind of humanity. That gave Nelson Mandela lot of hope. ठीक है, सो अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट द होप दैट ही कैरिड कि पीपल आर ऑलवेज loving. They always care for each other. They always have the goodness and kindness. We just need to keep having faith in that goodness, in that kindness of humanity. ठीक है, सो दिस स्मॉल लिटिल फ्रेज अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब होता है कि उन्होंने अपने जेल के सेंटेंस के दौरान जब आसपास के वाइट लोगों में, कांस्टेबल हो, प्रिजन गार्ड हो, इन लोगों में भी कभी कभी ही सही, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ऑफ या साइन ऑफ रिस्पेक्ट, साइन ऑफ गुडनेस देखा, तब उनमें भी वो होप फॉर लव एंड फॉर फ्रीडम एंड फॉर good future kept its place. ठीक है, it was not completely drained out. ठीक है, तो वो जो उन्होंने वो होप जो है ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी के द्वारा ही जलाए रखा था. ठीक है, फिर लास्ट एक्सेप्ट या लास्ट फ्रेज क्या है, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस. ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस वो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जब वो बताते हैं कि वो बड़े हो गए और उनको ये समझ में आ गया कि वो अब तक मतलब जो छोटे में वो अपने लाइफ को जैसा लीड कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो फ्री नहीं है, ही इज़ नॉट अ फ्री सिटीजन. बट बड़े होकर के जब उनको समझ में आया, जब उन्होंने अपने फैमिली के लिए भी सोचा, अपने कम्युनिटी को सफ़र करते हुए देख करके जब उनको लगा कि हमारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ, मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है, तो अपने फैमिली को थोड़ा सा साइड लाइन में रख के ही सही, लेकिन अपने फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए वो लड़ने लगे और वो इस दौड़ में, इस फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हो गए. सो ही वॉज एट दैट टाइम लिविंग अंडर अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस. मतलब वो पूरे जोशो खरोश से शामिल तो ज़रूर हुए थे, लेकिन क्योंकि ऑपरेशंस लोग उनको दबाने वाले थे, तो वो पूरी तरह से ओपनली नहीं रह पा रहे थे, वो एक सीक्रेट लाइफ लीड कर रहे थे. सो टू ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस इज हिज सीक्रेट लाइफ एज अ फ्रीडम फाइटर. Now, let's talk about a very important aspect, and that is long answer question. Definitely a long answer question might come from this chapter. So here I'm giving you a long answer which covers almost every aspect of the chapter, and I'm explaining it to you so that you can remember it properly. And you can use this long answer for writing any kind of long answer which is being asked, because this chapter has the plot or the summary or the incident that takes place are also reflective of the moral of the story or the lesson that we learn from the story. So the basic thematic and plot wise you can have two different long answer type, one for the thematic answer, one for the plot answer, but in this case it can be a same long answer which can go for both thematic answer as well as plot answer. ठीक है, तो कोई भी चैप्टर होता है, हमेशा याद रखना कि उसका एक लॉन्ग आंसर आप प्लॉट के हिसाब से लिख ले, मतलब उसके समरी के हिसाब से लिख ले कि क्या क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कैसे कैसे सीक्वेंस हुए इंसिडेंट्स के, या फिर एक थीमेटिक आंसर लिख ले जो कि मॉरल या लेसन लर्नड के ऊपर बेस्ड होता है. लेकिन ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर का प्लॉट और इसका थीम ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज दोनों में ही आप इसमें लेसन्स ही बताते हैं कि इससे क्या सीखा, इससे क्या हम समझ रहे हैं, है ना. तो इसलिए एक लॉन्ग आंसर को आप अगर अच्छे से कर ले तो उसको आप थीम आंसर के लिए और प्लॉट आंसर के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स गो इनटू द आंसर विच आई हैव प्रोवाइडेड. Long Walk to Freedom is an autobiography of the first black president of South Africa, Nelson Rolihlahla Mandela. The
portion that we study in our chapter is an extract from this book. It provides a lifelong struggle of black people of South Africa facing apartheid in general and Nelson Mandela as a family man who suffers for his community in particular. It begins with a description of the swearing-in ceremony of the first democratically elected president, moves on to provide citation from his speech, provides the details of the celebration that took place on that special day of 10th May 1994 in the Union Building of Pretoria, and finally presents an overall outlook of a long drawn battle for freedom, its freedom fighters and the values to be learnt. So this is the basic summary, right? So ये long walk to freedom जो है वो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन रोहिल्ला मंडेला के, और ये जो है इसमें हम बात कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल का, जो कि बहुत ही लंबा था, और स्पेशली साउथ अफ्रीकन पीपल के फ्रीडम स्ट्रगल और उनके फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड के बारे में बात कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली नेल्सन मंडेला के लाइफ और लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए लड़ा था। ठीक है, फिर हम आप देख पा रहे हैं कि कैसे स्वेरिंग सेरेमनी हो रही है, नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट चुने जा रहे हैं 10 मई 1994। ये डेट बहुत ज़रूरी है याद रखना। और कहाँ पर ये स्वेरिंग सेरेमनी हो रहा है? यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में हो रहा है, जहाँ पर कि सारे लोग प्रेजेंट हैं बाहर के देश के। ठीक है, और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाता है, वैल्यूज़ जो कि हम मतलब लर्न कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। और ये सारा चीज़ जो है साइटेशन ऑफ नेल्सन मंडेला की स्पीच से है। साइटेशन मतलब उनके स्पीच का हिस्सा है। ठीक है, उनके स्पीच का पूरा पोर्शन ला करके वहाँ पर डाला गया है। तो ये आपका एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, ये आपका वो चैप्टर है। तो आगे जानते हैं कि और क्या क्या है इस चैप्टर में। नेल्सन मंडेला took a vow as the first democratically elected president of South Africa in 1994, and this idea of the newly and fairly elected government was embraced by all countries across the globe who had sent their delegates to show solidarity to this government. On this day, alongside the president, two deputy presidents too sworn as part of this democratic government before various foreign dignitaries and the people of South Africa from all races. There are speeches followed by the rendition of two national anthems and air show of fighter pilots and helicopters. When Mandela is greeted by the senior army and police personnel, he is reminded of the fact that this was impossible a few years back when he might have been arrested by the same officials. ठीक है, तो आज जो एक्सट्रैक्ट है उसमें क्या दिखाया जा रहा है? ये 1994 10 मई का सीन है यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में। नेल्सन मंडेला और उनके साथ दो और डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स स्वेरिंग सेरेमनी में ओथ ले रहे हैं, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के नेशन को एक डेमोक्रेटिकली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा रन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और उनके सामने हैं बहुत सारे फॉरेन डिक्टेटरीज, पूरे साउथ अफ्रीका के लोग जो कि सारे रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हम स्पीचेस देख पाते हैं, और स्पीचेस के साथ रेंडिशन ऑफ दो नेशनल एंथम्स भी है। ठीक है, सो रेंडिशन ऑफ नेशनल एंथम्स, एंड व्हाई टू नेशनल एंथम्स? बिकॉज one national anthem was previously being sung by the white people, which was abhorred and hated by the black people. ठीक है, एक नेशनल एंथम इसमें से वाइट पीपल लोगों का था, और जो कि पहले से ही साउथ अफ्रीका का एंथम माना जाता था, लेकिन ये एंथम जो था वो ब्लैक पीपल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो इसलिए ब्लैक पीपल का एक अपना ही अलग गान था, अलग एंथम था। आज वो दोनों ही एंथम गाए जा रहे हैं, और इसमें दोनों तरह के रेसेस शामिल हैं। ठीक है, और उसके अलावा एयर शो हो रहा है, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर पायलट्स का। नेल्सन मंडेला को सलामी दी जा रही है as a president by the army chiefs and police personnel or high ranking officials। लेकिन ये जब हो रहा है तब नेल्सन मंडेला को याद आ रहा है, रिमाइंड हो रहा है कि कुछ सालों पहले ये बात बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। यही लोग शायद उनको उस वक्त पकड़ के बंद कर देते, जेल में ले जाते, लेकिन आज ये उनके सामने प्रॉमिस कर रहे हैं दैट दे आर गोइंग टू सपोर्ट हिम, राइट। फिर वी ऑल्सो कम टू हिज स्पीच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज स्पीच। ठीक है, इन हिज स्पीच मंडेला promises his countrymen that there won't be any more suppression of one। So
In his speech, Mandela is promising his countrymen that there won't be any more separation of one race by other. He recalls how the 20th century was marred by the white supremacist policy of apartheid, which made the life of the black African people a living hell. He is reminded of the endless sacrifices of numerous freedom fighters who are not present here to experience this shining autumn day. However, he is filled with gratitude towards all his comrades and freedom fighters who have given up so much to achieve this valuable gift of freedom through their strength of character and courage. Courage is not the absence of fear, but the triumph over one's fear. He refers to country's citizens as its most significant asset. So the speech is very, very important. What is he doing in the speech? वो नेल्सन मंडेला स्पीच में पहले तो प्रॉमिस करते हैं ब्लैक अफ्रीकन्स एंड वाइट अफ्रीकन्स एवरीवन इन बिटवीन को कि अब कभी भी कोई भी रेस दूसरे रेस को सप्रेस नहीं कर पाएगा. फिर वो याद करते हैं फ्रीडम फाइटर्स को, उनके एंडलेस सेक्रीफाइसेस को, और वो दुखी होते हैं कि आज इस शाइनिंग ऑटम डे को, इस ब्राइट सनी डे को, जबकि डेमोक्रेसी का democracy is raising in their nation, they are not there, the freedom fighters are not there to experience it. However, he is filled with gratitude. He is thankful to all those freedom fighters for their strength of character and for courage. Now, यहाँ पे दो important parts हैं. Strength of character. How these freedom fighters have got that strength of character, that high level of supreme characteristics in their life, because of the oppression, because of the kind of sufferings that they have gone through, and how they have continued with the courage and how they have kept on suffering and still being brave, because they were not actually fearless, but they were able to overcome their fear by continuing their struggle, by never giving up, by being resilient. ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर और करेज के बारे में बताते हैं फ्रीडम फाइटर्स के. और करेज जैसे कि फियरलेस होना नहीं होता है, बल्कि उसको ओवरकम करना होता है, इसके बारे में बताते हैं. और फाइनली अपने स्पीच में ये भी बताते हैं कि जो कंट्री के सिटीजन्स हैं वो ही उनके सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट हैं, और इसीलिए वो आज खुश हैं क्योंकि उनका पूरा कंट्री आज एक साथ होकर के आया है. He then explains how every person has twin responsibility, first towards his own family and relatives, and the second obligation is towards his community, its people, and the entire nation. While he was growing up, he realized that as a child he was living a life of illusion, and when he became an adult, this realization made him to fight for his community, as he knew that even if one of his own is deprived or chained, every other faced the same hate. This made him brave, and he continued the fight for himself and his family too. फिर वो बताते हैं कि हम सभी को दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, एक तो अपने फैमिली के तरफ और दूसरा अपने कम्युनिटी, अपने नेशन के तरफ. जब वो छोटे थे तो कैसे उनको पता नहीं चला, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो अपने कम्युनिटी के लोगों को तकलीफ़ में देखकर वो समझ सके कि वो और उनके फैमिली मेम्बर्स भी इसी तकलीफ़ में हैं और उनको फ़ाइट करना चाहिए, और उन्होंने वो फ़ाइट किया. फिर चैप्टर के एंड में क्या होता है? द चैप्टर एंड्स विद द आइडिया ऑफ हाउ द ऑपरेसर्स आर इक्वली अंडर चेन्स ऑफ देयर हेट एंड प्रेजुडिस, एंड दस पॉइंटिंग आउट दैट दिस फ्रीडम मेंट सो मच फॉर बोथ द ऑप्रेस्ड एज वेल एज द ऑपरेसर्स. फिर वो बताते हैं कि ये सभी के लिए, ये फ्रीडम बहुत सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑपरेसर्स होते हैं, जो कि लोगों को तकलीफ़ कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं, वो खुद भी चेंड हैं, वो खुद भी गुलाम हैं किसके? अपने अंदर के हेट के, अपने अंदर के प्रेजुडिस के, रॉन्ग आइडियाज़ के. ठीक है, इसलिए ये फ्रीडम दोनों ही साइड के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम थीमेटिक पॉइंटर्स एंड हाउ दे कैन बी आस्क्ड एज क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर देम. ठीक है, तो थीमेटिक पॉइंटर्स और उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं? अपार्थेड, और ये जो है ये ही बेसिक पॉइंट्स है, इसको आप याद कर लोगे तो आपको पूरा चैप्टर याद नहीं करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो अपार्थेड मतलब जैसे रंग भेद या डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू ब्लैक कलर ऑफ द स्किन, and how its long drawn effects
कॉज ट्रबल फॉर द साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल. ठीक है, तो अपार्थेड के बारे में हो सकता है. मंडेला स्पीच एंड हिज प्रॉमिस टू हिज पीपल ऑफ नो फर्दर ऑपरेशन डिप्राइवेशन टू बोथ साइड. ठीक है, मंडेला का प्रॉमिस, और उन्होंने कैसे प्रॉमिस किया दोनों ही साइड को, वाइट पीपल को भी ब्लैक पीपल के साथ प्रॉमिस किया कि दोनों में से कोई भी किसी को अब ऑपरेशन नहीं करेगा. ऑपरेशर्स एंड ऑपरेस्ड दोनों ही साथ में फ्री हो रहे हैं आज. His gratitude towards all the freedom fighters and their strength of character which evolved to the greatest heights due to the harshest treatment they received. ठीक है, तो फिर वो अपना थैंक कैसे जताते हैं, और फिर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में वो क्या बताते हैं कि वो इतने ऊंचे दर्जे के फ्रीडम फाइटर्स, उनका कैरेक्टर इतना बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग कैसे हो पाया, क्योंकि वो फियरलेस थे इसलिए नहीं, बल्कि वो फियर को ओवरकम कर पाए, और वो बहुत हार्श ट्रीटमेंट झेलते रहे ताकि उनका कैरेक्टर सोना होकर के उभर गया है. फिर फ्रीडम फाइटर्स के करेज के बारे में तो मैंने बताया ही है कि करेज वॉज नॉट बिकॉज दे वर फियरलेस बट बिकॉज दे कुड ओवरकम इट बाय फेसिंग इट हेड ऑन. फिर वो कैसे बताते हैं कि सिटीजन्स जो हैं वो एसेट्स ऑफ नेशन है, मतलब वो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है नेशन के, और सिटीज़न आज जैसे सब कोई साथ होकर के आए हैं, ये सबसे बड़ा लिबरेशन का सेलिब्रेशन है नेल्सन मंडेला के हिसाब से. फिर और एक क्या क्वेश्चन हो सकता है, जो डुअल ऑब्लिगेशन है हर एक इंसान का, एक अपनी फैमिली की ओर और दूसरा अपने पूरे नेशन की ओर, है ना, ये चीज़ कैसे हमें नहीं भूलना चाहिए. फिर फाइनल क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जैसे ऑपरेसर कैसे चेन्ड है या ओप्रेस्ड है, और उन लोग भी कैसे फ्री नहीं हैं. ठीक है, तो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही फ्री नहीं हैं, बिकॉज ऑपरेसर जो है वो भी अपने हेट और प्रेजुडिस के अंडर में दबा हुआ है, और ऑपरेस्ड को वो दबा रहा है. ठीक है, तो ये उसका आंसर हो सकता है. यू कैन यूज दैट सेम लॉन्ग आंसर एंड यू कैन यूज फ्यू एलिमेंट्स गिवन हियर एंड राइट any kind of thematic long answers. Okay, so I hope you have understood the chapter properly. I wish you all the very best. Please do like, share and subscribe for more such content. Keep learning, keep exploring. Good day to all of you, and thank you very much.